پیش خدمت ہے مشہور و معروف ہارر سٹوری حمزاد پارٹ۔ سچ رضیہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا تمہاری امی نے؟ کہتی کیا، فی الحال تو چپ ہو گئی ہیں، بہرحال میں انہیں راضی کر ہی لوں گا۔ ذرا ابا جان کا معاملہ تھوڑا سخت ہے، اگر وہ نہ مانے میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ابا جی کو راضی کرنا تو بہت چھوٹی سی معمولی سی بات ہے۔ کیا تم واقعی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو کہ اپنی جان کی بازی لگا سکتے ہو؟ ہاں رضیہ، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اختر کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ میں اس کے بعد ان کی گفتگو سننے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ جو اپنی محبوبہ کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی موت سے بے خبر پڑے سکون کے ساتھ آنے والے اچھے دنوں کے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ کتنا بھولا اور معصوم سا ہے یہ نوجوان، آنے والے دن سے بے خبر خود اپنی موت سے کھیل رہا ہے، لیکن مجھے اس پر رحم کیوں آ رہا ہے؟ میں سوچتا رہا اور یہی سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کے باغ میں اختر کی جگہ میں ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور رضیہ میرے دونوں زانوں پر اس طرح سر رکھے نرم زمین پر لیٹی ہے جیسے اختر کے ساتھ لیٹی تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھی۔ رفتہ رفتہ رضیہ کا چہرہ خوفناک حد تک ڈراؤنا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دانت باہر کی طرف لٹک آئے اور منہ سے رال بہنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک دم اپنے دانت میرے نرخرے میں گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود مجھے بہت دیر تک ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے میں خواب ہی کے عالم میں ہوں۔ آنکھیں کہتی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے، لیکن ذہن اسے خواب ہی سمجھنے پر آمادہ تھا۔ کچھ دیر بعد نیند نے پھر مجھ پر یلغار کر دی اور میں سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھولی تو حمزاد موجود نہیں تھا۔ میں اپنی خاص قوت کو بروئے کار لایا اور آج خلاف معمول رضیہ کی حویلی کی بجائے اپنی حویلی کا تصور کیا۔ حویلی میرے سامنے تھی، مگر نہیں، مجھے خیال گزرا کہ یہ میری حویلی تو نہیں ہے، کہیں میرا تصور مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ پھر میرا تصور اس حویلی کے ایک کمرے، ایک ایک دالان اور ایک ایک دریچے سے گزرا۔ ویران اجاڑ حویلی، عجیب ہیبت ناک قالینوں پر منو گردہ میں ڈھیروں کوڑے کے ڈھیر۔ حویلی کا کیا کیا ہو گیا اتنے سے دن میں؟ میں سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میرا تصور اپنی حویلی سے بھٹکتا ہوا بدایوں کے گلی کوچوں میں آ گیا۔ لوگ اسی طرح ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی چہرے، وہی راستے، وہی اپنے، وہی بیگانے۔ بدلا تو صرف میں بچھڑنے والوں کو۔ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن لب پر میرا ذکر نہیں، کہیں میرا چرچا نہیں۔ کیا سب لوگ وہی ہیں؟ کیا میں اتنا ہی بے وقت تھا، اتنا قابل تھا کہ بھلا دیا جاؤں؟ میرا تصور نہ جانے کب تک انہی آشنا اجنبی راستوں سے گزرتا رہا اور میں اس وقت چونکا جب میں نے بالکل سامنے رضیہ کی حویلی دیکھی۔ میرا تصور رضیہ تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ وہ میرے سامنے تھی، شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہا چکی تھی، بالکل کسی تازہ کھلے ہوئے چمبیلی کے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ سفید چمبا اور غرارے میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ کالے کالے لمبے بال شانوں پر دونوں طرف بکھرے ہوئے تھے جنہیں وہ ہاتھوں سے جھٹک رہی تھی، اور اس کا بچہ اس وقت خلاف معمول کلکاریاں مار رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ رضیہ کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے رہ گئے۔ اس کی ماں زرینہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمیشہ اکیلے میں کس سے باتیں کرتی ہے، یا تو پاگل ہے یا میں نے کئی بار تجھے اس طرح کی بہکی باتیں کرتے سنا ہے۔ رضیہ جلدی سے بولی، کچھ بھی تو نہیں امی، میں تو منع سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ یہ بات نہیں بیٹی،
अब तू पराए घर की होने वाली है। मैं आज बात करके आई हूँ। हाँ, अगर तूने इस तरह की हरकतें की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तू वैसे ही बदनाम है। मैं नहीं चाहती लोग तेरे जन्म पर थूकें, मुझे बुरा भला कहें। जरीना की बात सुनकर रज़िया के साथ साथ मेरे और हमजाद के कान भी खड़े हो गए, जो इस वक्त कमरे ही में मौजूद था और गालबन तसव्वुर से पहले पहुंचने से पहले रज़िया से कुछ बात कर रहा था, जिसका जवाब रज़िया ने देना चाहा होगा कि अचानक जरीना आ गई और बात अधूरी रह गई। अम्मी, क्या बात करके आई हैं आप, और किससे? रज़िया ने पूछा। अरे और किससे बात करके आती, तेरे मामू को मना कर आई हूँ, और आज दोपहर के बाद तो तेरे अब्बा भी मेरे साथ गए थे। देख, अब एक बात कान खोल कर सुन ले, मैंने जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देने वाली हूँ। अब अख्तर से मिलना जुलना कतई बंद कर दो। मगर अम्मी, मैं तो उनसे कभी मिलती भी नहीं। बस बस रहने दे, मैं भी तेरी माँ हूँ। जो कह दिया है उस पर अमल कर, उसी में इज्जत है, वकार है। हम लोग कोई ऐरे गहरे खानदान के तो है नहीं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब वो बला तेरे पीछे पड़ गई और अल्लाह के वास्ते इतनी बदनामी मिल गई। अब कुछ भी नहीं बिगड़ा, वक़्त के साथ साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। जरीना ने उठते हुए कहा। उधर जरीना कमरे से निकली। उधर मैंने फ़ौरन ही हमजाद को मुखातब किया। ये सब क्या हो रहा है? तमाम बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, इसलिए कि आज अख्तर की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हमजाद ने कहा। तुम कहाँ चले गए? मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? ये रज़िया की आवाज़ थी, जो मेरे और हमजाद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने की अहल नहीं थी। वो समझ रही थी कि शायद हमजाद कहीं जा चुका है। मैंने हमजाद से कहा, पहले तो रज़िया से बात कर लो, फिर मैं बात करूँगा। हूँ, क्या बात है, बोलो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। हमजाद ने रज़िया को मुखातब किया। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी? अगर मेरे हाथ कांप गए तो? अख्तर ने मेरे हाथ से खंजर छीन लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? मैंने देखा कि बात करते करते रज़िया की सांस फूल गई। वो बुरी तरह खौफजदा मालूम होती थी। मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब रहूँगा। अगर तुम्हें यह खौफ है कि तुम अचानक उस पर हमला नहीं कर पाओगी तो उसका भी इंतज़ाम मैं कर दूंगा। अख्तर मरने से पहले ज़रा भी जद्दोजहद ना कर सकेगा। तुम उसे फूल तो सूंघा ही सकती हो ना? हमजाद ने पूछा। हाँ हाँ, फिर? रज़िया जल्दी से बोली। बस फिर ठीक है। तुम आज रात अख्तर के साथ बाग में जाओगी और वो पूरी तरह बेखबर होगा। मैं देखूंगा कि ये मौका गनीमत है तो मैं तुमसे कहूँगा कि अब फूल संगा दो। तुम वाकिफ़ ही हो कि मेरी आवाज़ सिर्फ तुम ही सुन सकती हो और कोई नहीं। फूल और खंजर तुम्हें पिछली खिड़की के दाएं हाथ वाले कंज में पत्तों के नीचे छुपे हुए मिल जाएंगे। बस तुम्हें यह ख्याल रखना है कि अख्तर को उसी कंज में ले जाना। एहतियातन कुछ देर बाद तुम बाग में जाकर वो कंज देख आना कि वहाँ खंजर और फूल किस जगह रखे हैं, ताकि तुम्हें ऐन वक्त पर परेशानी ना हो। वैसे मैं तुम्हारे पास मौजूद ही होऊंगा। हाँ, ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि आज रात वो ना आए? वो ज़रूर आएगा, रज़िया ने खोए खोए से लहजे में कहा। अच्छा, मैं अभी आया। रज़िया से ये कहकर हमजाद मुझे मुखातब हुआ। कहिए, सब कुछ ठीक है ना? शाम ही से समझा रहा हूँ। ये बात पहले से ही मेरे इल्म में आ चुकी थी कि ज़रीना आज शाम तमाम मामला तय कर आई है, इसलिए मैंने रज़िया को आज ही तैयार कर लिया। दरअसल उसे इस कदर जल्दी की तवक्के नहीं थी। फिर ये कि बहरहाल वो लड़की है, घबराना कुदरती बात है। यही क्या कम है कि इतने पुरस्रार और अजीब हालात में वो अपने होशो हवास बरकरार रखे हुए है, वरना कोई और लड़की होती तो अब तक भूल जाती। हाँ, ये बात तो है। बस ज़रा तुम उसे हिम्मत बंधाते रहो। मैंने कहा, कुछ देर बाद आपके पास पहुंच रहा हूं ताकि आपको लेकर यहां पहुंच सकूं। हमजाद बोला। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि आज रात तो रज़िया की हवेली में मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। ठीक है, तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। फिर एक एक लम्हा गिनते गिनते वो वक़्त भी आ गया जब एक तवील अरसे के बाद मैं फ़िज़ाओं में तैर रहा था। फ़िज़ा में तैरने का एक अलग ही लुत्फ़ है जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हमजाद ने मुझे चंद ही लम्हों में रज़िया के बाग में पहुंचा दिया।
یہ وہ باغ تھا جسے ایک مدت سے میں اپنی تصور کی قوت کے بل بوتے پر دیکھ رہا تھا۔ مجھے رضیہ کی حویلی اور پھر اس کا باغ میں پہنچ کر قطعی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے یہاں رہتا بستا ہوں۔ میرا تصور یہاں کسی کا خوف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نصف رات گزر چکی تھی۔ حمزاد کے کہنے کے مطابق اس وقت رضیہ اور اختر کو باغ کے اس مقررہ کنج میں ہونا چاہیے تھا جس کا انتخاب حمزاد نے کیا تھا۔ میرا سر ایک پیڑ کی دو شاخوں کے درمیان میں رکھا گیا تھا۔ اسی پیڑ کے بالکل برابر وہ کنج تھا۔ میں نے اپنی سماعت کو اس طرف متوجہ کیا اور کچھ ہی دیر میں مجھے وہ جملے صاف سنائی دینے لگے جو اس سے پہلے دھیمے لگ رہے تھے۔ رضیہ کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ خواہ مخواہ کواب میں ہڈی کی کیا ضرورت تھی؟ تم آج ہی اس سے مجھے ملاتے، کبھی اور کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی تھی۔ تم یہ الفاظ عابد کے لیے استعمال کر رہی ہو، عابد جو تمہاری پرستش کی حد تک عزت کرتا ہے۔ تم بھی عجیب ہو رے، اگر وہ آ جائے گا تم سے مل لے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تمہیں اس سے پہلے اس نے دیکھا تو ہے، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ تم بھی خواہ مخواہ روٹھ جاتی ہو۔ یہ آواز اختر کی تھی۔ میرا دماغ سرسانے لگا۔ اگر دل ہوتا تو اس کی دھڑکنیں ضرور تیز ہو جاتی، مگر مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں اختر کا جسم حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ دراصل میں رضیہ کی طرف سے مشتبہ تھا کہ وہ اختر سے ایسے ہی والہانہ انداز میں ملتی تھی کہ اس کی سچی انسیت کا گمان ہوتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی مجھے یہ فکر ہوئی تھی کہ رضیہ عین وقت پر مجھے دگا نہ دے دے کہ اختر سے نہ مل جائے۔ وقت ضائع مت کرو رضیہ، اسے زیادہ باتوں میں مت الجھاؤ، حمزاد نے سرگوشی کی جسے صرف میں اور رضیہ ہی سن سکتے تھے۔ بس وہ آتا ہی ہوگا، اختر نے رضیہ سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اختر نے رضیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ یہ منظر میرے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ رضیہ کو اختر کی آغوش میں دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہوا۔ آخر اب کس بات کا انتظار ہے؟ میں نے حمزاد سے کہا، اور حمزاد نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے رضیہ کو مخاطب کیا۔ رضیہ جلدی کرو ورنہ بنایا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اسی وقت رضیہ اختر کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی کہ واقعی تم میرے لیے جان دے سکتے ہو، لیکن ابھی جو تم نے کہا کہ عابد، رضیہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے حمزاد کا فکرہ سن لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ آہستہ سے کنج کی طرف رینگ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ یہ ہماری محبت کی آخری یادگار ہے، رضیہ نے معنی خیز لہجے میں اختر سے کہا۔ آخری یادگار؟ اختر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے رضیہ کے ہاتھوں سے پھول لے لیا۔ سونگھ کر دیکھو کیسی مست کن خوشبو ہے۔ رضیہ سچ بات کہہ گئی تھی۔ یہ عام گلابوں سے مختلف لگتا ہے مگر ہے خوبصورت۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ پھول اس کی ناک تک پہنچ چکا تھا مگر اس کی خوشبو بہت عجیب ہے رضیہ۔ یہ میرا سر کیوں چکرا رہا ہے اور یہ پھول مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے ساتھ ہی رضیہ کی طرف اٹھے ہوئے اختر کے ہاتھ ایک طرف گر گئے اور سر بھی ڈھلک گیا۔ اس کا جسم کنج میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور رضیہ کھوئی کھوئی سی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ مر گیا؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے، مگر ابھی کبھی ہوش میں نہیں آئے گا، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر رضیہ کو مخاطب کر کے بولا، میری روح سخت مضطرب ہے، اب دیر نہ کرو، میں ہلکان ہو رہا ہوں۔ حمزاد کی آواز میں ایک عجیب سی رقت طاری ہو گئی جس نے رضیہ کو چونکا دیا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا، اختر کا جسم۔ اس کے بعد رضیہ کا ہاتھ پھر ایک بار کنج کی طرف بڑھا اور اس بار اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں اپنی محبت کی خاطر اختر کا قتل کروں گی، میں اختر کو قتل کر دوں گی۔ رضیہ پر اس وقت جنونی سی کیفیت طاری تھی۔ اچانک قریبی کنج میں سے کچھ کھٹک سی ہوئی جسے کوئی دبے پاؤں گزر رہا ہو، مگر میں نے اس پر دھیان نہ دیا اور نہ ہی رضیہ نے اس طرف توجہ کی۔ میری تمام تر توجہ اس وقت اس پر مرکوز تھی۔ رضیہ خنجر ہاتھ میں لیے نامعلوم کس بات کی منتظر تھی۔ مجھے یہ لمحے بہت گراں گزر رہے تھے۔ نہ جانے رضیہ کی ہیجانی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کا ہاتھ نمایاں طور پر کانپ رہا ہے۔ شکار سامنے اور شکاری بے بس۔ آخر رضیہ کو
हो क्या गया है, मैंने सोचा और हमजाद से बोला, क्या हमारा सब कुछ किया धरा रह जाएगा? किसी तरह उसे राह पर लाओ। हमजाद ने मेरी बात का जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप जानते हैं कि वो एक लड़की है, उसकी ये हालत कुदरती तौर पर है। वैसे इस वक्त उसका जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कभी कत्ल ना कर पाएगी और उसके जज्बात को मज़ीद हैरत अंगेज़ करना आप ही का काम है। मैंने हमजाद के मशवरे पर फ़ौरन अमल किया और आवाज़ बुलंद में रज़िया को मुखातब किया, रज़िया, इन कीमती लम्हों को ज़ाया ना करो, ये लम्हे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो अपने बच्चे ही का ख्याल करो। दुनिया हमारी मुंतज़िर है, जहाँ तुम और मैं अपने बच्चे के हमरा हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इस ज़िल्लत और रसवाई की दुनिया से बहुत दूर, जहाँ हमें रोकने वाला कोई ना होगा। मैं कहे जा रहा था, मैंने देखा कि रज़िया के चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी बातों का उस पर खासा असर हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी, मैं अख्तर को कत्ल कर दूंगी, मैं अपने बच्चे का मुस्तकबल तारीक नहीं कर सकती। नहीं। रज़िया वाकई जज्बाती हो गई। तो फिर चलाओ खंजर, इंतज़ार किस बात का है? अचानक जैसे रज़िया के हाथों में बिजली की सी तेज़ी आ गई, उसने अख्तर के गले पर तेज़ खंजर फेर दिया। गरम गरम खून की धार अख्तर के गले से उबल कर रज़िया के कपड़ों से टकराई। रुको मत रज़िया, मैंने रज़िया से कहा। अख्तर का जिस्म उस वक़्त एक मर्तबा ज़ोर से तड़पा और उसके कटे हुए गले से खर खर की आवाज़ें निकलने लगी, जैसे बकरे को ज़िबा करने के बाद उसके गले से निकलती हैं। अख्तर का आधा गला कट चुका था और उसका खून कंज की हरी हरी घास को सुर्ख कर रहा था। उसी वक़्त करीबी कंज से एक साया निकल कर भागा और अंधेरे में ना जाने किधर गायब हो गया। ये ऐसा वक़्त नहीं था कि मैं उसकी तरफ तवज्जो दे सकता। मैंने रज़िया को फिर मुखातब किया, अब क्या देख रही हो? इसकी गर्दन इसके जिस्म से अलहदा कर दो, वरना काम अधूरा ही रहेगा। मेरे फ़ौरन बाद ही हमजाद बोला, और हाँ, ज़रा देख कर चलाना, गर्दन सीधी ही कटे। लेकिन मैंने देखा कि ना तो मेरी ही बात का रज़िया पर कोई असर हुआ और ना ही हमजाद के फ़िक्र का। वो एक मरतबा फिर हाथ में खंजर लिए उठ खड़ी हुई, जैसे पत्थर की हो गई हो। रज़िया, बारी बारी मैंने और हमजाद ने कई मरतबा मुखातब किया, खुद को संभालो रज़िया, यही तुम्हारी मोहब्बत के इम्तहान का वक़्त है। एक मरतबा मैंने जब ज़ोर से उसका नाम लेकर पुकारा तो जैसे उसका सख्ता टूट गया हो, मगर एकदम उसके मुंह से चीख निकल गई, जो रात के वक़्त और भी तेज़ महसूस हुई थी। यकीनन उसकी चीख इतनी ही तेज़ थी कि आसपास के घरों और हवेलियों तक ज़रूर पहुंची होगी। मेरे औसान खता हो गए, मगर हमजाद हिम्मत ना हारा और बराबर रज़िया को इस बात पर उकसाता रहा कि वो अख्तर का सर उसके जिस्म से अलहदा कर दे। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। रज़िया का हाथ अब तेज़ी से अख्तर की गर्दन पर चल रहा था। जैसे ही अख्तर का सर कट गया, हमजाद ने मुझसे कहा, तकलीफ़ तो बहुत होगी, लेकिन वक्ती तौर पर मुझे उम्मीद है आप बर्दाश्त कर जाएंगे। और फिर मुझे महसूस हुआ मेरा सर एक झटके से अपनी जगह से उठा और नीचे कान की तरफ बढ़ने लगा। रज़िया ने जैसे ही मेरा कटा हुआ सर देखा, उस मुंह से फिर चीख निकल गई। अब वो बिल्कुल पागलों की तरह चीख रही थी, देख लो, मैंने इसे कत्ल कर दिया, मैंने अख्तर को कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया। ये कहते कहते वो धारे मार मार कर रोने लगी। उसी लम्हे एक झटके के साथ मेरा कटा हुआ सर अख्तर की कटी हुई गर्दन से मिस हुआ और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी पर भरपूर ज़रब लगाई हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं हज़ार कोशिश के बावजूद अपनी चीखों पर काबू ना पा सका। उस वक़्त मेरी वही हालत थी जैसी उस रात जब मुझे कत्ल किया गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे गले पर कोई खंजर चला रहा हो। हमजाद मेरे सामने ही खड़ा था और उसकी हालत भी तकरीबन वही थी। उसके चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो भी इस वक्त सख्त कर्बो अज़ियत में मुब्तला है। एकदम तेज़ तेज़ सीटियां बजने और दौड़ते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो लम्हा बेलम्हा करीब होती जा रही थी। हमजाद ने फ़ौरन कान से बाहर निकल कर देखा, फिर बगैर वक़्त ज़ाया किए उसने मुझे उठाया और फ़िज़ा में बुलंद होता चला गया। रज़िया मुझे पुकार रही थी, सुने तो, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा मुन्ने को अंदर से ले आऊँ। सुनो सुनो,
मगर हमजाद ने उसकी एक ना सुनी। मैंने फ़िज़ा में बुलंद होते हुए वो सब कुछ देखा जिसने हमजाद को एकदम वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। वो तेज़ सीटियाँ पुलिस वालों की थी। अगर हमजाद चंद लम्हे भी देर कर देता तो पुलिस मुझ तक पहुँचने में कामयाब हो जाती। चांदनी रात ने कदम पर मेरे और हमजाद की रहनुमाई की। अगर रात अंधेरी होती तो पुलिस इतनी दूर से नज़र ना आती और फिर जो कुछ होता ज़ाहिर है मेरे हक़ में बेहतर नहीं था। मैं हमजाद के हमरा फ़िज़ा में तैर रहा था और अब हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे। मेरी तकलीफ़ अभी तक बदस्तूर थी। मैं ही जानता था कि मैं इस वक्त किस तरह ज़ब्त किए हुए था। हमारी मंजिल कहाँ है? मैंने रुक रुक कर बेमुश्किल हमजाद से पूछा। वही पुरानी खानका, हमें वहाँ पूरे 21 दिन बेहफाजत गुजारने हैं। ये सब कुछ मेरी और आपकी तकमील के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त भी मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। यकीन कीजिए इस वक्त जो कर्ब आप महसूस कर रहे हैं उसमें मैं भी गुज़र रहा हूँ, इसलिए कि मैं ही आपका जो जिस्म लतीफ़ हूँ। जब मादी जिस्म अज़ियत में मुब्तला होता है तो जिस्म लतीफ़ पर भी वही कफ़ियत होती है। नामालूम इस वक्त क्यों मुझे हमजाद पर क्यों बेइंतहा रहम आया। वो ख्वाह मेरे लिए अजाब में मुब्तला था। हम बहुत जल्द अपने मस्कन पर पहुंच गए। वीरान खानका में पहुंचकर हमजाद ने नामालूम मेरी गर्दन को किस नस को चुटकी में लेकर दबाते हुए कहा, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप सो जाएं और आपको अगर नींद आ गई तो मैं भी सो रहूँगा। कुछ आराम बेहद ज़रूरी है, वरना किसी नुकसान का एहतमाल भी हो सकता है। और उसके बाद हमजाद ने क्या कहा मैं ना सुन सका, इसलिए कि मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा। किसी के आहिस्ता आहिस्ता कराहने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैंने देखा कि हमजाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन पर मसाज कर रहा है और कराहने की आवाज़ भी उसी की थी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उससे पूछा। आपको तो मैंने सुला दिया, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो सका। आप भी कुछ देर बाद ही यही तकलीफ़ महसूस करेंगे जिससे मैं गुज़र रहा हूँ। दरअसल आपकी अज़ियत मैंने ओढ़ ली है। मैं जानता हूँ कि आप इतनी शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं। आपको बहरहाल कुछ ना कुछ तकलीफ़ उठाना ही पड़ेगी, हमजाद ने कहा। और कुछ देर बाद वाकई मैं एक बार फिर उसी कैफियत से गुजरने लगा जिससे रात को 2-4 हुआ था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बेमुश्किल हमजाद से कह सका। वो मुझे तरह तरह से बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी गर्दन और अख्तर के जिस्म के दरमियान एक खला सी महसूस हो रही थी, एक ऐसी खला जिसमें आग ही आग भरी हो। उस आग में मुझे अपना पूरा जिस्म झुलता हुआ लग रहा था। मैंने अपनी तवज्जो हटाने के लिए कुछ और सोचना शुरू कर दिया, और वह सोच सवाए रज़िया के और क्या हो सकती थी। हमजाद ने मुझे बताया कि तमाम कुव्वतें सल्ब हो जाने के बावजूद उसमें और मुझ में अभी एक कुव्वत ज़रूर बरकरार थी, और वो थी तसव्वुर की कुव्वत। जहन में ये ख्याल आते ही मैंने रज़िया का तसव्वुर किया। मैं ये जानने के लिए मुस्तरिब था कि कहाँ उसके साथ क्या सलूक हुआ है। कुछ देर के लिए मैं अपनी तकलीफ़ जैसे भूल ही गया। मेरी चश्मे तसव्वुर रज़िया को ढूंढ रही थी। उसी वक्त मेरी आंखों के सामने बदायूं के गली कूचे गुजर रहे थे। ये सुबह का वक्त था। लोग 2-2, 4-4 टोलियों में महल्लों और गलियों में महू गुफ्तगू थे। मेरा तसव्वुर कुछ देर के लिए यहाँ ठहर गया। आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मैंने सोचा अब मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैंने जो कुछ सुना और देखा उसका हासिल ये था कि अख्तर के कत्ल की इत्तला तमाम शहर में फैल चुकी थी और लोग आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें, लोग तरह तरह की क्यास आराइयाँ कर रहे थे। ये सब कुछ शायद चंद लम्हों में मैंने देख लिया और सुन लिया। मुझे अब रज़िया की तलाश थी। दूसरे ही लम्हे मेरे तसव्वुर में हवालात की सलाखें उभरी और उनके पीछे मुझे वो चेहरा नज़र आया जिसकी मुझे तलाश थी। ये रज़िया थी जो हवालात के फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, लिबास खून आलूदा और चेहरा इंतहाई मजमल था। एक ही रात में जैसे वो कतई बदल कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो बेहानक होने की हद तक उजड़ी हुई लग रही थी। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि उसे मुखातब करूं,
मगर कुछ सोच कर रुक गया। मैं बगैर हमजाद से मशवरा लिए कुछ नहीं करना चाहता था। आपने उसे देखा। अचानक हमजाद के मुखातब होने पर मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुंतके हो गया। हाँ, मेरे मुंह से एक सर्द आह निकली। आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? यही कि आपने उसे धोखा दिया, मगर उसका ज़मीर भी तो मुजरम है। उसने भी तो किसी को धोखा दिया है, और किसी धोखेबाज को धोखा देना इतना बड़ा गुनाह नहीं। हमजाद ने दलील पेश की, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। उसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया। वो बेकसूर है, कतई बेकसूर। उसे बहरहाल इस मुसीबत से निकालना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने हमजाद की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, लेकिन इन हालात में ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी मजबूर हूँ। हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमजाद बोला, ये तो खैर तुम ठीक कहते हो, मगर क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम रज़िया को इस बात से आगाह कर दें कि वो किसी तरह 21 दिन काट ले, उसके बाद हम उसे बचा लेंगे। लेकिन आप उसे कहाँ बांधे बांधे फिरेंगे? वो हमारे लिए अजाब बन जाएगी। लड़कियों की आपके लिए कोई कमी नहीं, फिर क्या ज़रूरी है कि वो रज़िया ही हो? मेरे ख्याल से आप इस सिलसिले में कुछ जज्बाती हो रहे हैं। हमजाद ने मुझे कहा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बात दरअसल ये है कि उससे पहले खुद मेरी राय रज़िया के बारे में अच्छी नहीं थी, और मैं उसकी तरफ से कतई मुतमिन नहीं था। लेकिन अब जबकि वो मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपनी मोहब्बत का अमली सबूत फराहम कर चुकी है, उसकी तरफ से मेरा दिल साफ हो चुका है। वो यकीनन मुझे चाहती है। बहरहाल जो भी हो, आपके सामने है। हाँ, एक बात बताइए कि 21 दिन पूरे करने के बाद क्या आप इसी शहर में रहना पसंद करेंगे? हमजाद ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। या फिर काफ़ी देर में और हमजाद मुस्तकबल के बारे में प्रोग्राम बनाते रहे। मुझे मुसलसल गुफ्तगू में उलझाए रखने से मकसद हमजाद का ये भी था कि मैं कम से कम तकलीफ़ की तरफ तवज्जो दे सकूं। मेरा ध्यान बटा रहा, और उसमें वो कामयाब भी रहा। उस दिन कई मरतबा उसने मेरे जहन को सकून बख्शने के लिए मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरोए कार लाऊं, और वह सब कुछ मालूम करने की कोशिश करूं जो रात को हमारे बाद रज़िया की हवेली में हुआ। मैंने लोगों की गुफ्तगू से जो कुछ सुना, शहर कोतवाल और पुलिस के दूसरे अमले की बातों से जो नतीजा अख्ज़ किया, वो ये था कि अख्तर का कोई दोस्त आबद, जो उसका राजदार था, कल रात बाग में मौजूद था। आबद बदायूं ही का रहने वाला था, मगर अपने वालिद की सरकारी मुलाजमत और उनके तबादले के बाद वो मुरादाबाद चला गया था। जिन दिनों रज़िया और अख्तर का इश्क जोरों पर था, आबद मुस्तकबल तौर पर बदायूं ही में था। अख्तर का दोस्त होने के सबब वो रज़िया से भी मिल चुका था। आजकल आबद बदायूं आया हुआ था, अख्तर ही के पास ठहरा हुआ था। अख्तर ने उसे ताज़ा हालात से आगाह किया तो उसने रज़िया से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसे अख्तर ने कबूल कर लिया। उसी सबब उसने रज़िया से भी उसके बारे में बताया। आबद को अख्तर की इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रज़िया एक बार फिर उसका दम भरने लगी है। अख्तर ने सबूत के तौर पर उससे कहा था कि अगर आबद को उसका यकीन नहीं तो आज रात खुद बराबर वाले कंज में छुप कर उनकी गुफ्तगू सुन ले, और जब अख्तर उसे बुलाए वो आ जाए। मगर आबद का बयान है कि जब उसने अख्तर के ये अल्फाज सुने कि उसका सर चकरा रहा है, और फिर रज़िया को ये कहते सुना कि मैं अपना वादा पूरा करूंगी, तुम्हें जिस्म मिल जाएगा और मैं अख्तर को कत्ल करूंगी, तो आबद घबरा गया। उसने सोचा कि यहाँ रज़िया और अख्तर के अलावा भी कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे रज़िया मुखातब है। आबद फितरतन ज़रा बुज़दिल वाक़या हुआ था। उसने लाख चाहा कि अपने कान से निकल कर देखे कि क्या मामला है, मगर उसकी हिम्मत ना हुई, और एक मरतबा कोशिश करने के बावजूद वो कान से बाहर निकलते ठटक कर रुक गया। मगर जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो उसने पूरी तरह देख लिया कि रज़िया ने उसकी आंखों के सामने अख्तर के गले पर खंजर फेर दिया, तो वो ज़ब्त ना कर सका और तेज़ी के साथ अपने कंज से निकलकर हवेली के पिछले दरवाजे से तकरीबन भागता हुआ थाने पहुंचा, और फिर पुलिस को हिमरा बाग में वापस आया। रज़िया की मुसलसल चीखों से उसकी माँ जरीना भी जाग गई थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल कर देख सके। उसने रज़िया के बाप को, मिर्ज़ा कदीर बेग को जगाया, और तकरीबन पुलिस के साथ साथ ये दोनों भी बाग में पहुँचे। अख्तर के बाप
जमशेद अली पुलिस के मौका पर पहुंचने के बाद बाग में आए थे, लेकिन पुलिस ने रज़िया तक पहुंचने से कबल ही और हमजाद वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने रंग हाथों रज़िया को पकड़ लिया। अख्तर के कत्ल का ऐनी शाहिद आबद भी उस वक़्त पुलिस के साथ मौजूद था। पुलिस ने बाग के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला, मगर वो अख्तर के सर के अलावा उसका बकिया जिस्म ना पा सके। अख्तर का कटा हुआ सर उन्हें कंज में मिल गया था। रज़िया ने दहशत ज़दा होकर पुलिस के सामने कबूल कर लिया था कि जिस पर किसी ने यकीन किया हो या ना किया हो, मगर शहर कोतवाल ज़रूर घबरा गया था। उसकी समझ से बाहर था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। रज़िया ने मेरा जो हुलिया बयान किया था, उससे शहर कोतवाल ही क्या, हर वो शख्स जिसने मुझे देखा था, यही नतीजा अक्स करता कि वो शेख करामत के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जबकि वो सब इस बात से भी आगाह थे कि शेख करामत को कत्ल हुए एक अरसा गुजर चुका है और उसका सर पुरस्रार तौर पर लाश से गायब हो गया था। शहर कोतवाल ने लाख चाहा कि यह बात छुपी रहे कि रज़िया ने पुलिस को क्या बयान दिया है, मगर उसके बावजूद सुबह होते ही तमाम शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग ये तमाम बातें सुनकर हैरत ज़दा भी थे और खौफ ज़दा भी। रज़िया ने जो कुछ पुलिस को बताया था वो उनके लिए बहुत अजीबो गरीब था। रज़िया ने शुरू से लेकर अब तक मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि किस तरह मेरी और उसकी मुलाकात हुई और फिर मैंने उससे क्या कहा। फिर एक तवील अरसे के बाद जब वो मेरे बच्चे की माँ बन गई तो किस तरह मेरा कटा हुआ सर उसने देखा और मैंने किस तरह उसे अख्तर के कत्ल पर आमादा किया। वो हमजाद के वजूद से तो बेखबर रही थी, इसलिए उसने पुलिस को यही बताया कि वो हर वक्त मुझसे मुखातब रहती थी और मैं ही उसके पास रहता था। उस बात की गवाही रज़िया की माँ ने भी दी थी कि उसने अक्सर रज़िया को तन्हाई में किसी से बातें करते सुना है, जबकि उसका कमरा कतई खाली होता था। रज़िया के बयान के बाद पुलिस ने बाग से वो फूल और खंजर भी बरामद कर लिए थे जिनके बारे में रज़िया ने बताया कि वो उसने दिए थे। शहर कोतवाल वो खंजर देखकर एकदम चकरा गया था। खंजर के फल पर उसने अपना नाम पढ़ लिया था। हमजाद ने वो खंजर खुद शहर कोतवाल के घर से हासिल किया था और इत्तफाक ये कि उस खंजर के फल पर शहर कोतवाल का नाम कुंदा था। वो सख्त उलझन में मुब्तला था कि उसका खंजर यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ये तमाम केस उसके लिए ख़तरनाक था, इसलिए उसने अपनी मदद और मशवरे के लिए एसपी को बुला भेजा। एसपी के सामने उसने तमाम वाक़यात की तफसील से बयान किए। एसपी को बुलाने से एक मकसद शायद उसका ये भी था कि एसपी भी मेरे मोतकीन में से था। एसपी भी तमाम हालात तफसील से सुनकर उलझ कर रह गया। हालात इतने अजीब और पुरस्रार थे कि सोचते सोचते उनके जहन थक गए। अख्तर के बकिया जिस्म गायब हो जाना और ख़ुद अख्तर का रज़िया जैसी लड़की के हाथों कत्ल उस बात की खुली शहादत थी कि रज़िया का बयान कतई दुरुस्त है। फिर शहर कोतवाल के खंजर का आला कत्ल बनना एक अलग उलझावा था। उन सब बातों की रोशनी में यही नतीजा अख्ज़ किया जा सकता था कि यकीनन कुछ पुरस्रार कुव्वतें उन हालात के पसे पुश्त काम कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद दुनिया की कोई अदालत इन बातों को मानने के लिए तैयार ना होती। इस बात से शहर कोतवाल और एसपी दोनों ही वाकिफ थे। अब ये बात आम लोगों तक भी पहुंच चुकी थी कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए कि जो हुलिया रज़िया ने पुलिस को बताया था वो मेरा था और पुलिस ही कुछ अमले से वो बात आवाम तक पहुंची थी कि रज़िया ने क्या बयान दिया है। शहर कोतवाल के लिए अब भी ये मुश्किल हो गया था कि वो रिपोर्ट में से खंजर के जिक्र को गायब कर दे, इसलिए कि खंजर के बारे में रज़िया का बयान भी था और आबद ने भी देख लिया था। फिर वो इस बात से भी खौफजदा था कि जो पुरस्रार हस्ती उसके घर से खंजर गायब करा के रज़िया तक पहुंचा सकती है, उसे किसी भी मरहले पर फांस सकती है। इसलिए उसने अपनी बेहतरी इसी में समझी कि वो जो कुछ है उसे उसी तरह अदालत के सामने रख दे और अपनी तरफ से कुछ कम ना करे और ना ही बढ़ाए। रज़िया के पास खंजर की मौजूदगी के बारे में वो सवाए अपनी लाइल्मी ज़ाहिर करने के और कर भी क्या सकता था। उसने एसपी से यही कहा कि आज इन हालात में
اس کا ہر قدم انتہائی محتاط اٹھے گا اور وہ جو کچھ بھی سچ سچ ہے عدالت کے روبرو کہے گا۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اختر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اختر کے والد جمشید علی اور رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کا بھی برا حال تھا۔ جوان بیٹے کے پرسرار قتل نے جمشید علی کی کمر توڑ دی تھی۔ اختر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہی حال کچھ قدیر بیگ کا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی رضیہ ہی تھی۔ دونوں گھروں میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اسی دن شام کو تھک ہار کر پولیس نے صرف اختر علی کا سر جمشید علی کے سپرد کر دیا۔ اس کا جسم تلاش کرنے میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ اختر کے سر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اختر کے جنازے میں پورا شہر جمع ہو گیا اور ہر شخص اپنی بساط بھر قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر میں نہ رہ سکا کہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، مجھے برا بھلا کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے میرے لیے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلا تھا۔ وہ میرا نام زبان پر لانے کے بعد خوف زدہ ہو کر اس طرح ادھر ادھر دیکھتے جیسے میں کہیں قریب ہی موجود ہوں اور کہیں مجھے ان کی کوئی بات گراں نہ گزرے جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہرا رہے تھے، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ واقعی میں ان کے اتنا ہی قریب تھا کہ ان کی ایک ایک بات سن سکتا تھا، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ شام کے بعد جب خاصی رات ہو گئی تو مجھے رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے صبح سے اب تک اس کی خبر تو نہیں لی تھی۔ میں نے حمزاد سے پوچھا کہ میں یہاں رہ کر جس طرح تمہیں پہلے مخاطب کر سکتا تھا، کیا رضیہ سے بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں؟ صبح بھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، مگر میں نے بغیر تمہارے مشورے کے ایسا مناسب نہیں سمجھا۔ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ فاصلے کے باوجود صرف مجھ سے بات کرنے کے اہل ہیں اور کسی سے نہیں، اس لیے کہ میں تو خود آپ ہی کا جسم لطیف ہوں۔ کسی دوسرے سے بات کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ میرے علاوہ دور رہ کر بھی رضیہ کو مخاطب کر سکتے تو پہلے ہی میں رضیہ کے پاس کیوں رہتا؟ یہ پرسرار قوت صرف دیکھنے اور سننے تک محدود ہے، یا صرف مجھ سے بات کرنے تک، جس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ صرف مجھے ہی فاصلے کے باوجود کیوں مخاطب کر سکتے ہیں؟ حمزاد سے یہ سب کچھ جان کر مجھے سخت ملال ہوا اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ رضیہ کو کم از کم یہ تسلی ہی دے دی جائے کہ اسے بچا لیا جائے گا، وہ یہ 21 دن کسی طرح گزار دے؟ نہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں کہ ان 21 دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حمزاد بولا، اور اگر اس عرصے میں رضیہ کو پھانسی ہو گئی تو؟ مجبوری ہے، اب جو بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی یہ کیس نہیں نمٹے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سے الجھاوے ہیں جو میں نے جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ مثلا شہر کوتوال کے خنجر والا معاملہ، ایک طرح سے وہ بھی اس قتل میں ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ قتل اسی کے خنجر سے ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح شہر کوتوال کسی اس چکر میں پھنسا دیا جائے اور سارا الزام اس پر ڈال دیا جائے۔ میں نے پوچھا، ممکن تو سب کچھ ہو سکتا ہے، 21 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حمزاد نے جواب دیا، اور یہ 21 دن کانٹا میرے لیے سخت اذیت ناک ہے۔ میں نے کہا، اور اب میرا ذہن تھکنے لگا تھا اور کچھ نیند بھی محسوس ہو رہی تھی۔ باقی باتیں کل صبح ہوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو واقعی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی یا میں اتنے عرصے میں کچھ عادی ہو گیا تھا۔ بہرحال جو حالت کل رات تھی آج نہیں تھی، چنانچہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حمزاد کس طرح مجھے سلا دیتا۔ میں رضیہ ہی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی میں 17 دن پورے کر چکا تھا، اور اب مجھے پوری طرح ٹھیک ہونے میں صرف 4 دن کی ضرورت تھی۔ میرے علم میں سب کچھ تھا جو ان 17 دنوں میں ہوا تھا۔ شہر کوتوال نے اس عرصے میں ایس پی سے مل کر
पूरा केस तैयार कर लिया था। कत्ल का ऐनी शाहिद मौजूद था। इसके अलावा वो दीगर गवाहों में रज़िया की माँ, जरीना का बाप मिर्ज़ा कदीर बेग और अख्तर के वालिद जमशेद अली थे। रज़िया को अदालत में पेश किया गया तो जैसे पूरा शहर कचहरी पर टूट पड़ा। हर शख्स उसे देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन किसी की उम्मीद बरहम नहीं आई। सेशन जज ने कमरे की अदालत में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ चंद खास लोगों को दी थी, जिनमें मुअज़्ज़िनीन शहर के अलावा सिर्फ वो लोग थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक मौजूदा केस से था। वो या तो अख्तर के रिश्तेदार थे या मिर्ज़ा कदीर बेग के जानने वाले जो उसके साथ आए थे। जज ने एक अंग्रेज़ एडवर्ड था, मुझे उसका पूरा नाम नहीं याद रहा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और लंच टाइम के बाद तक जारी रहा। आइंदा तारीख फैसले की थी, इसलिए कि अदालत की नज़र में केस साफ था। मुजरमा इकबाल जुर्म कर चुकी थी। जिस वक़्त जज आइंदा तारीख का ऐलान करने वाला था, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि तारीख 4 दिन के बाद पड़े तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं रज़िया के लिए कुछ कर सकूं। मेरी मुराद बर आई। जज ने आइंदा हफ्ते की तारीख दी थी, यानी अब से ठीक 8वें दिन बाद। मेरा दिल ये जानकर बहुत खुश हुआ कि रज़िया हर तरह फंस चुकी है और अब कोई कानून उसे नहीं बचा सकता, मगर मुझे अपने और हमजाद के ऊपर भरोसा था कि हम उसे इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। वो 4 दिन कांटे की तरह मेरे लिए अजाब बन गए। मैं एक एक लम्हा गिन रहा था। खुदा कर करके वो शाम भी आई जब मैं इस काबिल हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, मगर नहीं, पैर मेरे कब थे? ये तो उस शख्स के थे जिसके कत्ल में रज़िया मुलव्वस थी। मैं अख्तर के पैरों पर खड़ा था। जिस्म मेरे अपने जिस्म से ज़्यादा सेहतमंद और खूबसूरत था। मैंने पहली मर्तबा उस पर हाथ फेर कर देखा। अब भी मेरे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल ज़रूर मौजूद था कि ये मेरा अपना जिस्म नहीं है। मैंने ज़हनी तौर पर अभी उस जिस्म को कबूल नहीं किया था। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और हैरान रह गया। वहाँ मुझे कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे ये पता चलता कि मेरी गर्दन को किसी दूसरे जिस्म के साथ जोड़ा गया है। खाल मुलायम और चिकनी थी। हमजाद इस वक्त भी मेरे पास मौजूद था। वो मेरी हरकत को बड़ी मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा था, जैसे मेरी सेहत याबी और नए जिस्म का मिलना उसके लिए भी उतने ही मसरत की बात हो। सब कुछ ठीक था सिवाय इन कपड़ों के जो मैं पहन पहुंचने हुए थे और उस पर अभी तक खून के धब्बे मौजूद थे। मैं न जाने कब तक अपनी इसी हालत में रहा कि हमजाद ने कहा, आपको नया जिस्म मुबारक हो, आइए ज़रा बाहर खुली फिजा में चलें। ऐसे लगता है जैसे हम सदियों से इस खानकाह में कैद हैं। आने वाली सुबह तक आप कतई एतदाल पर आ जाएंगे। अब मुझे आपके खाने वगैरह और कपड़ों की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। हमजाद और मैं बातें करते हुए इस शिकस्ता खानकाह से बाहर आ गए। हल्का हल्का अंधेरा अतराफ में फैलने लगा था। कपड़े तो खैर मैं आपके लिए अख्तर ही के ला दूंगा ताकि आपके जिस्म पर बिल्कुल ठीक आए। रहा खाने का मसला तो सुबह देखा जाएगा। आप उन्हें जानते कि कितने बड़े तजर्बे से गुजरे हैं। कई मरतबा तो खुद मैं भी घबरा गया था। हालात ने इतनी जल्दी जल्दी और गैर मुतवक्का तौर पर नए नए रुख इख्तियार किए हैं कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो जी छोड़ जाता, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। आप बिल्कुल एक आम आदमी की तरह एतदाल पर हैं। अब आपको भूख भी लगने लगी है और प्यास भी। अब तक मैं आपको संभाले हुए था। आपका इतने दिन इन ख़तरनाक हालात में ज़िंदा रहना, जबकि आप और मैं तकरीबन बेबस थे, किसी मौजज़े से कम नहीं। हमजाद कहता रहा, अब ये भी ज़रूरी हो गया है कि इस शहर को छोड़ दिया जाए। यहाँ सभी आपके वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं कि आप कत्ल किए जा चुके हैं। दूसरा एक कत्ल के सिलसिले में भी आप मुलव्वस हैं। मेरा मशवरा तो यही है। वैसे आपको इख्तियार है कि अगर आपकी मर्ज़ी इस शहर में रहने की है तो ये ज़मानत मैं ले सकता हूँ कि आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। लोग पहले ही आपसे खौफज़दा हैं और जब वो आपको दोबारा ज़िंदा हालत में देखेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने आपके हजूर गुस्ताखी की
तो वो सख्त सज़ा पाएगा। मैं हमजाद की बात सुनकर फिक्रमंद हो गया। सब कुछ खुद मेरी नज़र में था। बदायूं में रहना अपने लिए नई नई मुसीबतें मोल लेने के मुतरादिफ था, और इन मुश्किलों पर किसी तरह काबू भी पा लिया जाए तो हर वक्त किसी भी नागहानी मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखना मेरे बस से बाहर था। ख्वामख्वाह ज़िंदगी अजीरन होकर रह जाती। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर यही फैसला किया कि ये शहर छोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त तक नहीं जब तक रज़िया को रिहा ना करा लूँ। ये मसला मेरे लिए अभी बाकी था। इसके अलावा ये भी सोचना था कि यहाँ से अगर जाया भी जाए तो कहाँ जाया जाए। यही सवालों में मैंने हमजाद से भी यही सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कराया और कुछ देर बाद बोला, मैं पहले ही समझता था कि आपका फ़ैसला कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैंने यही सोचा है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। अब मसला ये किस शहर में जाना चाहिए ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अभी आप अपने कातलों को नहीं भूले होंगे। क्या मतलब? मैं हमजाद के मैनी खेज लहजे को सुनकर चौंक पड़ा। क्या तुम्हारी माँ मुराद मीट कोट के नवाब साहब के गुंडों से है? जी हाँ, उनसे इंतकाम अभी बाकी है, हमजाद ने संजीदगी से कहा। हमजाद की बात सुनकर मेरा खून भी खौलने लगा। मैं इस अरसे में अपने कातलों को तो कतई भूल गया था। यकीनन मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगा कि उनकी रूह भी पनाह मांगेगी। मुझे सब याद है, वो होलनाक रात मैं नहीं भूला जब उन बुज़दिलों ने मुझे नहते को घेर कर कत्ल कर दिया था। हम मीट गोट ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि रज़िया की रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। हमजाद के साथ उन्हें बातों में रात गई। वो इसी रात जाकर ना जाने कहाँ से बिस्तर और चारपाई उठा लाया। इसके अलावा वो मेरे लिए कपड़े लाना भी नहीं भूला था। वो अख्तर के कपड़ों के कई जोड़े ले आया था जो मैंने पहन कर देखे। जिस्म तो ज़ाहिर है अख्तर ही का था, कपड़े बिल्कुल ठीक थे। उस रात ना जाने कितनी रातों के बाद मैं एक कुदरती नींद सोया। सुबह उठा तो हमजाद ने मेरे गुस्ल का पूरा सामान सजा रखा था। 2 बड़ी बाल्टियों में पानी, लोटा वगैरह सब कुछ था। एक तवील अरसे के बाद मैं जी भर के नहाया। फिर कपड़े वगैरह तब्दील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब से पहले गुजरने वाले दिन मुझ पर नहीं किसी और पर गुजरे थे। वो सब जैसे एक बेहानक ख्वाब था जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया। हमजाद, मैं अपनी हवेली में जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना ख़तरनाक है। वहाँ आपकी मौजूदगी राज नहीं रह सकेगी। मेरा मशवरा है कि जब तक आप ये शहर नहीं छोड़ते इसी खानकाह में रहें। यहाँ मैं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। आप जो कहेंगे मैं यही मुहैया कर दूंगा। तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा इरादा वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने का नहीं, बस नामालूम क्यों जी चाह रहा है। मैंने कहा, आपका जो हुक्म। चलिए। हमजाद तैयार हो गया। चंद लम्हों बाद मैं पागलों की तरह अपनी हवेली के एक एक कमरे में चकराता फिर रहा था। जहाँ जाने कितने दिनों बाद मैं पैरों पर चलकर अपने दरबार से गुजर रहा था। मेरे इस एहसास को वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो एक तवील अरसे तक अपने घर से दूर रहने के बाद दोबारा घर आए हों। हालांकि मेरा यहाँ आना लाहासिल ही था। इन खाली दरो बाम में क्या धरा था, मगर मेरे माजी से उनके रिश्ते ज़रूर थे। माजी जिसे मैं चाहूँ भी तो नहीं भुला सकता। मैं अपने हाफजे से एक मामूली वाक़या भी खुर्च कर नहीं फेंक सकता था। सरगुज़श्त वाक़ई इतनी अजीब और पुरस्रार है कि खुद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। इस हवेली में इस वक्त मैं था, मेरा बचपन गुजरा था। यही पहली मर्तबा मैंने खुद को नौजवान महसूस किया था, बल्कि जवान होने का सबूत दिया था। जब अपने सोने के कमरे में पहुंचा तो ना जाने कितने हसीन चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए। कैसे कैसे बदन थे जो यहाँ मेरे पहलू में कसमसाए थे। मेरी वहशत बढ़ती गई। फिर एक मर्तबा हवेली के मुख्तलिफ कमरों के चक्कर काटने लगा। यहाँ महफिल आम जमती थी, यहाँ मैं कवालियाँ कराता था, और वहाँ वो हमजाद ने मेरे हालत का अंदाज़ा करते हुए वापस चलने को कहा। हवेली से खानकाह पहुँचने के बाद मेरे जिस्म की प्यास जग चुकी थी। मैंने हमजाद से कहा, आज की रात खाली नहीं जाएगी, रात तो आने दीजिए। हमजाद ने जवाब दिया, हैरत ज़दा ना रह जाएं
तो कहिएगा। और वाकई हमजाद ने मुझे जो कुछ कहा था वैसा ही हुआ। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने थोड़े से दिनों में उसका ये हाल हो जाएगा। उसकी रुखसारों की हड्डियां बाहर आ गई थी, चमकती हुई आंखें अब बुझी बुझी सी थीं और वह बिल्कुल बदली हुई थी। मुझे देखकर उसे भी जैसे सकता हो गया। शायद उसके वहमों गमान में भी नहीं था कि मैं उससे मिल जाऊंगा। रज़िया, ए रज़िया, मैंने उसे मुखातब किया। वो जैसे नींद से बेदार हो गई। ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो पहली मर्तबा बोली। नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम मेरे पास हो, मेरी आगोश में, मैंने रज़िया को अपने सीने से लगाते हुए कहा। और वह मेरे सीने से लगते ही एकदम फूट फूट कर रोने लगी। फिर हंसियों के दौरान वो बोली, तुम बेवफा हो, तुमने मुझे भुला दिया था, तुम खुद गर्द हो। न जाने वो क्या क्या कहती रही और मैं उसे अपने सीने से लगाए उसे तसल्लियां देता रहा। फिर अचानक उसने एक ऐसी इतला दी जिसने मुझे लर्जा दिया। जानते हो, वो मर गया। कौन? मैंने पूछा। हमारा मुन्ना, वो बोली और फिर रोने लगी। मुझे रज़िया से इस तला का सुनकर सख्त सदमा हुआ। मैंने तमाम हंगामे में इस नन्हे को कतई भूल गया था, जिस पर मुझे कई बार इन बेइंतहा प्यार आया था और मुझ में ख्वाहिश जागी थी कि काश मैं उसे अपनी गोद में लेकर प्यार कर सकता। ये खबर सुनकर मेरी नफसानी ख्वाहिशात ना जाने कहाँ गायब हो गई। उसी वक्त हमजाद ने मुझसे कहा, इसे सुबह होने से पहले वापस भी पहुंचाना है, इसलिए जब तक केस का कानून तौर पर उसके हक में फैसला ना हो जाए, इसका आज़ाद होना दुश्वार रहे। मैं उसे सिर्फ आपके लिए जेल से ही निकाल कर लाया हूँ, और दूसरी सूरत यह भी मुमकिन है कि उसे गायब ही कर दिया जाए, मगर इस सूरत में हर वक्त उसे साथ रखना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए कि जेल से फरार होने का इल्ज़ाम भी इसके सर आ जाएगा। पुलिस इसकी तलाश में रहेगी। हमजाद की बातें सिर्फ मैं ही सुन सकता था। यह हमजाद के लिए बहुत मामूली सा करिश्मा था कि वो अपनी बात जिसे सुनाना चाहता सिर्फ वही सुनता, कोई दूसरा नहीं। हालांकि एक अरसे तक वो रज़िया से हम कलाम रह चुका था, मगर अब रज़िया भी उसकी बात सुनने की अहल नहीं थी। मैंने हमजाद की बात पर गौर किया। वो सही कह रहा था। इस वक्त रज़िया को जेल से फरार मेरे लिए मसला बन सकता है। रज़िया की हचकियाँ अब किस कदर कम हो गई थी। मैंने दानिस्ता बच्चे के बारे में मज़ीद तफसील से उस वक़्त इज्तनाब किया ताकि बच्चे के ज़िक्र से रज़िया को तकलीफ़ ना हो। मैंने उसके रुख्तारों से आंसू साफ़ कर दिए। तुम वाकई शेख करामत हो या कोई और मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हो और मेरे लिए यही जानना काफ़ी है। मैंने तुम्हारे लिए तमाम दुनिया से रिश्ता मुंतक़े कर दिया है। लोग कहते हैं कि तुम इस दुनिया के आदमी हो और बदायूं ही के रहने वाले हो। जो भी हो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर पूछूंगी कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रज़िया काफ़ी संभल चुकी थी। मेरे लिए अब ज़रूरी हो गया था कि उसके जहन से अपने बारे में शकूक व शुबहात दूर कर दूं। इसलिए मैंने उससे कहा, रज़िया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अगर मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना होता तो इस वक्त तुम मेरे पहलू में ना होती। हालात कुछ इस तरह के थे कि अख्तर के जिस्म से राबता पैदा करने के लिए मुझे वक़्त चाहिए था, जिसका इल्म मुझे पहले से नहीं था। ऐन वक़्त पर मुझे मालूम हुआ कि 21 दिन तक कती अज़ू मुअत्तल हो के रह जाऊंगा, वरना तुम इन हालात से ना गुजरती। मैंने तुमसे अपने बारे में जो कुछ कहा था वो हरफ ब हरफ सच है। लोग एक बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं। हो सकता है कि शेख करामत मेरा हम शक्ल हो, जिसकी बिना पर सारे मफरूज़ात लोगों ने खुद ब खुद घड़ लिए हों। तुम बहुत जल्द खुद देखोगी कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा था उसमें कुछ झूठ नहीं। मैं अपने अल्फाज से एक मर्तबा फिर रज़िया को धोखा दे रहा था। उसके चेहरे से बेयकीनी की परछाइयाँ दूर होती जा रही थी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी था कि मुझ अब वाकई रज़िया के साथ दिली लगाव महसूस होने लगा था। हालांकि इस वक्त रज़िया में इतनी जिस्मानी कशिश नहीं रह गई थी जो कभी थी, लेकिन उसकी खुद सपुर्दगी का वालहाना अंदाज अब भी वही था। मैं रज़िया को समझा रहा था कि अगर मैं वाकई तुम्हारी ही दुनिया का कोई फ़र्द होता तो तुम खुद सोचो
کہ بغیر جسم کے اتنے دن زندہ کس طرح رہتا، پھر اپنا کٹا ہوا سر کسی دوسرے جسم کے ساتھ کس طرح جوڑ لیتا، اور سب سے آخر میں یہ کہ تم اس وقت میری آغوش میں کس طرح ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دلائل سے اب وہ مطمئن ہو چکی ہے، اور تمہیں ابھی 3 دن جیل میں اور گزارنے پڑیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فیصلہ ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں قانونی طور پر رہا کرواؤں، عزت سے بری کرواؤں، اور تم دیکھو گی کہ ایسا ہی ہوگا۔ سچ؟ وہ ایک دم خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاں، صبح ہونے سے پہلے تمہیں پھر جیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ 3 دن مصیبت کے اور کاٹ لو، اور ہاں، میں تم سے اب کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ تمہارا رہا ہونے کے بعد میں کچھ دن کے لیے اپنی دنیا میں جاؤں گا۔ وہاں سے واپسی پر تمہیں ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے ہم یہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ تم اسی عرصے میں تم اپنے گھر ہی رہو گی، لیکن کیوں؟ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں جن سے رفتہ رفتہ تم بھی آگاہ ہو جاؤ گی۔ فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں اس پر خاموشی سے عمل کرو، یہی میرے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے حالات سے گھبرا کر اب تک میرے بارے میں پولیس کو جو کچھ بتایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو ایسا ہی کرتی۔ اتنے غیر متوقع اور عجیب تھے کہ مجھے اس سلسلے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اب آئندہ تم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میری بات سن کر رضیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، تم کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ پہلے سے کچھ کہنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں جلد سے جلد تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور سنو، یہ رات آخری رہی، میں جانے سے پہلے تم سے مل کر ہی جاؤں گا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، دیکھو رات دبے پاؤں گزر رہی ہے، اور یہ رات بہت دن بعد آئی ہے۔ ایک طویل اور تھکاوٹ والے انتظار کے بعد رضیہ میرا اشارہ سمجھ کر اور بھی سمٹ گئی۔ جب ہلکا ہلکا اجالا ہوا تو میں نے رضیہ سے جدا ہو کر رات ہی میں نے غسل کے لیے پانی منگوا رکھا تھا۔ میں نے خانقاہ کے اس حصے میں جا کر نہایا اور کپڑے تبدیل کر کے میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ آپ نے بہت دیر کر دی، دیکھیے بالکل صبح ہونے والی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ رضیہ پر کچھ شبہ نہ کیا جائے، اور جس طرح خاموشی سے میں اسے لایا تھا اسی طرح واپس پہنچا دوں۔ حمزاد رضیہ کو لے کر چلا گیا۔ میں رات بھر جاگنے کے سبب فوراً ہی سو گیا۔ اس رات کے بعد احتیاطاً میں نے رضیہ کو نہیں بلایا، اور بقیہ 2 راتیں میری آغوش خالی رہی۔ میں نے مصلحتاً بھی ایسا کیا تھا تاکہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب میں جو بھی کرنا چاہتا تھا میٹھ پہنچ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے جذبہ انتقام مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں جلد سے جلد میرٹھ پہنچ کر اپنے قاتلوں کو مزہ چکھاؤں۔ نواب صاحب کے گنڈوں کو میں ابھی نہیں بھولا تھا، اور نہ خود نواب صاحب کو، جن کے سبب مجھے اتنے بڑے عذاب سے گزرنا پڑا تھا۔ پھر نواب صاحب کا طبیب خاص بھی میری نظر میں تھا، جس نے نرگس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے کر معلوم کر لیا تھا کہ میں کس شہر کا ہوں۔ یہ سارے قرض مجھے بیان کرنے تھے۔ وہ 3 دن انہیں حالات کو سوچتے ہوئے گزر گئے۔ 3 دن سے پہلے میں بدایوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے کہ رضیہ کا معاملہ ابھی بیچ ہی میں لٹکا ہوا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا تھا کہ شہر میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ رضیہ کو عمر قید ہو جائے گی۔ میں نے حمزاد سے گفتگو کی۔ رضیہ کے لیے جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل قرین قیاس اور ممکن تھا کہ رضیہ اس طرح صاف بچ سکتی تھی۔ جس دن رضیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، حمزاد میرے حکم پر صبح ہی کچہری پہنچ گیا۔ آج بھی تمام شہر اختر کے قتل کا فیصلہ سننے ٹوٹ پڑا تھا، حالانکہ ان سب کو یقین تھا کہ رضیہ عمر قید سے نہیں بچ سکتی اور فیصلہ یہی سنایا جائے گا، مگر ہر شخص مضطرب تھا۔ مقدمہ پیش ہوا، مگر وکیل صفائی کی کمزور جرح مشکل سے 5 منٹ بھی نہ چلی۔ جج ایڈورڈ نے فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ میں یہ سب کچھ خانقاہ میں آنکھیں بند کیے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جج کی کرسی کے پیچھے مجھے حمزاد نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شاید جج بھی فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ناواقف تھا کہ اس کا قلم کیا فیصلہ لکھے گا۔ جج پر حمزاد پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ جج فیصلہ لکھ کر جب آواز بلند پڑھنے لگا تو اچانک اس کی آواز بے جان سی ہونے لگی۔ وہ لمحے کے لیے رکا اور پانی مانگا۔
उसे फौरन पानी पेश किया गया। जज अपने फैसले पर खुद हैरान था और अब आंखें फाड़ फाड़ कर सामने रखे हुए कागज को घूर रहा था। सारी अदालत में सन्नाटा था। लोगों ने जो कुछ अब तक सुना था वो उनके लिए इंतहाई गैर मुतवक्के और हैरत में डाल देने वाला था। वो पूरा फैसला सुनने के मुंतज़िर थे। जज एडवर्ड अपनी पेशानी रगड़ रहा था। एक मर्तबा उसने कुर्सी से उठना चाहा, मगर लोगों ने देखा कि एक झटके के साथ वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। वो अदालत बर्खास्त करना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर सका। उसकी ज़ुबान भी उसके काबू में नहीं थी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लोगों को कुछ सुनाई ना दिया। जज पसीने में शराबूर हो गया। लोगों को जैसे सकता सा हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जज को क्या हो गया। जज ने एकदम घबराकर जल्दी से सामने रखा हुआ कागज उठाया और फिर शुरू से बुलंद आवाज पढ़ने लगा। अब लोग उसकी आवाज सुन रहे थे। जज ने फैसला सुनाया और अदालत बर्खास्त कर दी और फौरन अपनी कुर्सी से उठकर अपने चैम्बर की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम वाज़े तौर पर डगमगा रहे थे। एक उर्दली ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। जज की कुर्सी से उठते ही अदालत का कमरा जैसे मछली बाजार बन गया। हर शख्स जज के फैसले पर उलझ रहा था। जज ने रजिया को बाइज्जत बरी कर दिया था। उसकी दलील उसने ये दी थी कि रजिया का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, जो उसके बयान से ज़ाहिर है, और अख्तर का कत्ल भी उसी का नतीजा है। फैसला मुख्तसर होने के बावजूद जामिया था। उस फैसले पर मिर्ज़ा कदीर बेग ही नहीं बल्कि जमशेद अली भी खुश थे, और ये उनकी आला ज़रफ़ी ही थी कि वो अपने बेटे की कातला के बाइज्जत बरी हो जाने पर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। रजिया बहरहाल उनकी भांजी थी। बेटे का गम तो झेल ही चुके थे, और बहन की बेटी की मौत वो किस तरह बर्दाश्त करते। फैसला सुनने के बाद मिर्ज़ा कदीर बेग और जमशेद अली गले लग कर रोए। कदीर बेग भी अख्तर के कत्ल पर बहुत गमज़दा थे। सारा शहर इस गैर मुतवक्का फैसले को सुनकर शशदर रह गया। उन्हें इस फैसले के पीछे भी शेख करामत की कोई करामत ही नजर आ रही थी। रजिया अपने बाप मिर्ज़ा कदीर बेग के साथ अपने घर चली गई। मेरे जहन से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया था। हमजाद ने वाकई बहुत बड़ा काम किया था। दोपहर के बाद जब वो वापस लौटा तो मैंने उसे बहुत शाबाश दी। अब क्या इरादा है? ये काम तो हो गया। मेरा ख्याल है आज ही क्यों ना मेट चला जाए, हाथ नवाबों के गुंडों से भी निमट लिया जाए। हमजाद बोला, बस आज की रात मैं शहर में और रहना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं ये रात कहाँ गुजारना चाहता हूँ? मैंने हमजाद से पूछा। रजिया की हवेली। कहिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमने ठीक कहा है। दरअसल मैंने उससे वादा किया था कि बदायूं के छोड़ने से कबल एक मर्तबा फिर उससे मिलूंगा। मैंने कहा। आधी रात गुजरने से कुछ देर पहले हमजाद मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। उसने मुझे रजिया की हवेली की छत पर उतार दिया। मैंने अंधेरे में हमजाद की रहनुमाई में नीचे जाने वाले जीने की तरफ बढ़ा। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि रजिया का कमरा अंदर से बंद है। मैंने बहुत आहिस्ता से दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना मिला। मजबूरन फिर छत पर आना पड़ा। वहां से पुश्त की तरफ बाग में उतरकर उस खिड़की की तक पहुंच गया जो अक्सर खुली रहती थी, मगर आज खिलाफे मामूल वो भी बंद थी। मैंने खिड़की पर दबाव डाला तो अंदर की तरफ खुल गई। अंदर से बंद नहीं की गई थी। मैं खिड़की पर चढ़कर अंदर कमरे में आहिस्तगी के साथ कूद गया, और फिर जैसे ही रजिया की मसहरी की तरफ बढ़ा, एकदम किसी की घुटी घुटी चीख निकल गई। चोर बुरी तरह चीखे जा रही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं उसकी आवाज़ से उसे पहचान चुका था। ये रजिया की माँ जरीना है। रजिया भी एकदम अपनी माँ की चीख सुनकर एकदम उठ बैठी थी और हैरत से इस तमाम मंजर को देखने लगी। कमरे में बहुत सी हल्की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। इससे पहले कि सूरत हाल मजीद बिगड़ती, मैंने हमजाद को तलब किया, और नामालूम उसने क्या किया कि जरीना एकदम मेरे हाथों में झूल गई। जल्दी से रजिया उठी और उसने लालटेन की लो ऊंची कर दी। मैं झंझला गया। ये क्या हमाकत थी? जब तुम्हें मालूम था कि आज रात में आने वाला हूँ, तुम्हें अलग सोना चाहिए था। अपनी माँ को दूसरे कमरे में सुलाना चाहिए था। रजिया मेरा गुस्सा देखकर सहम गई।
फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। इन्हें क्या हो गया? ये क्या कर दिया तुमने? रज़िया ने रक्कत भरे लहजे में पूछा। ये सिर्फ बेहोश हुई है, सुबह तक होश में आ जाएंगी। मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बरहमी से कहा। अम्मी खुद जिद करके मेरे पास सो गई थी, वरना तुम तो जानते हो कि उनका कमरा अलग है। रज़िया भी इतना ही कह पाई थी कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। रज़िया, क्या हुआ मेरी बेटी? दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ मिर्ज़ा कदीर बेग की थी। ये एक नई मुसीबत थी। यकीनन कदीर बेग ने जरीना की चीख सुन ली थी। मैंने आहिस्ता से रज़िया के कान के करीब मुंह ले जाकर कुछ कहा और रज़िया मसहरी के नीचे घुस गया। रज़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने रज़िया की मसहरी के नीचे पड़े पड़े आंख बंद करके अपने तसव्वुर की कुव्वत को जगाया। अब मेरे सामने रज़िया का पूरा कमरा था। मिर्ज़ा कदीर बेग घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। वो चीख किसकी थी? क्या हुआ था तुम्हें? मैंने महसूस किया कि दूरी के सबब कदीर बेग ये तमीज़ नहीं कर पाए कि चीख रज़िया की थी या जरीना की। नहीं तो अब्बू, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, अम्मी भी आराम से सो रही हैं। मेरी आंख तो आपके दरवाजे पीटने से खुली है। ना मालूम मुझे क्या हो गया है। कदीर बेग बड़बड़ाता हुआ वापस चला गया और ये कह गया, तुम सो जाओ। रज़िया ने फौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब कदीर बेग के कदमों की चाप कहीं दूर जाकर मालूम हो गई तो मैं मसहरी के नीचे से निकला और रज़िया से बोला, ये सब तुम्हारी हमाकत का नतीजा है। बहरहाल जो हुआ उस पर खाक डालो। मैं आज तुम्हारी दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि जाने से पहले तुमसे ज़रूर मिलूंगा। देख लो, मैं आ गया। ये कहकर मैंने रज़िया को अपनी तरफ खींच लिया। वो मसहरी के सरहाने खड़ी थी। वो अपनी माँ की तरफ देख कर कसमसाई। वो सुबह से पहले नहीं जागेंगी। क्या ख्याल है ये मसहरी कुछ देर के लिए खाली कर ली जाए? और अम्मी, रज़िया ने पूछा, वो कुछ देर नीचे बिस्तर पर लेटा दी जाएंगी। और हाँ सुनो, सुबह जब ये जाकर उठें तो तुम उनसे यही कहना कि रात को कुछ भी नहीं हुआ। वो तुमसे कुछ भी कहें मगर तुम यही कहोगी कि उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। समझ गई? रज़िया ने असबात में सर हिलाया। फिर मेरे हुक्म पर हमजाद ने जरीना को मसहरी से उठाकर नीचे दरी पर बिछा कर लिटा दिया। रज़िया हैरत से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। मसहरी उठकर नीचे बिछी हुई दरी पर दराज होते हुए तक देखती रही। उसे हमजाद नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था कि हमजाद ने जरीना को मसहरी से उठाकर नीचे फर्श पर लिटा दिया है। जब रज़िया ने मुझे किसी अनदेखे वजूद को मुखातब करते हुए देखा तो हैरत ज़दा रह गई। उस वक़्त कुछ भी ना बोली थी कि अपनी माँ के जिस्म को इस तरह फ़िज़ा में बुलंद होते देखकर और फिर फर्श पर नीचे लेटते देखकर वो ज़ब्त ना कर सकी। ये क्या है? तुम किससे बात कर रहे थे? अभी तुमने किसे हुक्म दिया था? इन सब बातों में ना पड़ो। तुम तो जानती हो कि मैं अपनी दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। मेरे कुछ खादमीन हर वक्त मेरे हजूर हर काम बजा लाने के लिए मौजूद रहते हैं। आओ, ये हसीन रात इन बेकार बातों में ज़ाया ना करो। मैंने ये कहकर रज़िया का हाथ पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं खो जाता मैंने हमजाद को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि बाग में कहीं ना कहीं से पानी लाकर रखे ताकि मैं फौरी तौर पर गुस्ल कर सकूं। आपको इसी कमरे की खिड़की के नीचे वो बाल्टी पानी भरा हुआ मिल जाएगा। आप मुतमईन रहें, आप आराम से बाग में गुस्ल कर सकते हैं, मगर ये ख्याल रहे कि बिल्कुल सुबह ना हो जाए। हमजाद ये कहकर मुझसे रुखसत हो गया।